Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in the previous videos we have solved the introduction part of the set and their representation, and also we have solved the first exercise of the NCERT textbook. So अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. So the next topic is the empty set. So now let us see what is empty set. Before proceeding, I give you some two circumstances. Suppose A is a set of X such that X are the students who are currently in class 11. Okay students, A is a set X such that X are the students who are currently in class 11. And suppose we have also a set B, X such that X are the students who are currently in class 11 and class 10 also. So in the A, if you are in school, that you know that you would go in class 11 and you can count the number of students easily. So in the A there is no problem, but in the B, see here, are the students who are currently in class 11 and class 10 also. Is this possible? No, there can't be a single student who can study class 11 and class 10 simultaneously. ऐसा हो ही नहीं सकता. So in the A set we can list out the names of the students, we can list out the number of students also, but in the B we can't even list out a single student. So here comes the concept of empty set. So the empty set is a set which has no elements, means it has no element. So this set is also known as null set or void set. So what I was telling, an empty set, a set which does not contain any element is called the empty set, and it is also called the another name of empty set like aliasing. इसका दूसरा नाम है null set or void set. It is denoted by letter phi, Greek letter phi. इस फाई लेटर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं. सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके. तो सपोज कीजिए कि ए एक ऐसा सेट दिया हुआ है X सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज रैशनल. So x square minus 3 equals to 0. The solution of this equation would be what? X equals to root 3 or plus minus root 3. So plus minus root 3 is an irrational number, you know students. So is rational. It is said here that is rational. So there would be no element in this set. So this is an empty set. So again, this set is also an empty set. You can see as I told earlier, class 11 और class 10 में जो ऐसे बच्चे जो class 11 और class 10 दोनों में पढ़ रहे हैं एक साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो ये क्या है? empty set है स्टूडेंट्स. और नाउ अब आगे बढ़ेंगे. सो B रिप्रेजेंटेड B है. सो C सेट एक ऐसा सेट ले लो जो X such that X is a integer lying between 1 to 2. तो 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर होगा क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो सी इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. तो हम लोग मैंने बताया कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे, और एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम नल सेट है या वॉइड सेट, और इसे फाई लेटर से डिनोट करते हैं. और यह कुछ एग्जांपल्स हमने नल सेट के देखे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
So students, now we would move further and see what are finite set and infinite. So अब हम लोग देखेंगे कि finite set क्या होते हैं और infinite set क्या होते हैं. तो इसको देखने के लिए as the name suggest finite and infinite, इसी से सारा कुछ हमें समझ में आ जाएगा. जैसा कि मैं दो एग्जांपल लिखता हूँ. सपोज आप ए कीजिए, आपने सबने लूडो जरूर खेला होगा. तो लूडो के जो पासे होते हैं उसमें संभावित संख्या मतलब प्रोबेबल डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं. व्हाट आर द प्रोबेबल डिजिट्स इन द डाइस ऑफ अ लूडो? इट माइट बी 1, 2, 3, 4, 5 और आइदर 6. ओके, and the suppose some set another set is Z. So Z is a set of integers. So we might like integer. So integer can't be restricted. So you can list all integers? No, it cannot be possible for us to list all the integers. So we write like dot 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 -2, -1, 0, 1, 2. ऐसे हम लोग लिख देते हैं. इसका क्या मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है और प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है. We can list some of the integers. So this is an infinite set and this is a finite set. So a finite set has finite elements and an infinite set has an infinite element. So the cardinality of this set, I haven't taught you the cardinality because and just note it down. This is a simple thing. Cardinality of the set is denoted by a number into set bracket and it is the number of element present in that set. So cardinality of the set is A is 6 and for set B cardinality is not defined. Why? Because this set has infinite number of elements, students. So please understand, a finite set has finite number of elements and an infinite set has infinite number of elements. मैंने कहा कि इन फाइनाइट सेट के अंदर हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स एलिमेंट है तो हम लोग इजीली काउंट भी कर सकते हैं फाइनाइट सेट को. और इनफाइनाइट सेट के अंदर क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते. तो क्या हुआ, ऑल सेट्स ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट सेट. एग्जाम्पल अगर इनफाइनाइट सेट का देना चाहे, रियल नंबर का सेट होगा इनफाइनाइट सेट जिसको आर से डिनोट करते हैं. इंटीजर का सेट जेड जिससे डिनोट किया वो इनफाइनाइट सेट है. नेचुरल नंबर जिससे एन से डिनोट करते हैं. ये सारे क्या होंगे हमारे, ये सारे इनफाइनाइट सेट के अंदर आएंगे. और फाइनाइट सेट जो कोई भी सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे हम लोग फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखते हैं. So my dear students, we saw the set which is empty or consists of definite number of elements are called finite set, otherwise infinite set. तो जिस सेट में या तो empty हो, so mark this word, empty भी हो सकता है, या तो definite number of elements हो, उसको क्या बोलेंगे, finite बोलेंगे. अन्यथा नहीं तो हम लोग इसे infinite set बोलेंगे. सो आई होप आपको यह डेफिनेशन क्लियर होगा जैसा कि मैंने ऊपर भी समझाया. तो अब एग्जांपल देखते हैं. ये कौन सा सेट है, पहला वाला सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक. तो सेट ऑफ डेज ऑफ वीक मतलब, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक, सैटरडे तक. सो इट वुड बी लाइक 7 days फिक्स. सो इट इज अ फाइनाइट सेट. एंड दिस वन, set of points on a line. So we know a line has infinite number of points. So this is a infinite set. I hope students ये टॉपिक आपको क्लियर होगा. सो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ. सो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट्स. सो इक्वल सेट्स, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, दो चीजों को इक्वल कब कहते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं. इन द सेंस, सेट की भाषा में अगर कहे, इन द लैंग्वेज ऑफ सेट वी कैन से इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. मीन्स सेट ए और सेट बी दो सेट हैं सपोज. तो सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में बी के भी एलिमेंट है, और सेट बी के जितने एलिमेंट है वो सेट ए के भी एलिमेंट है. तो अल्टीमेटली कहने का अर्थ ये है कि ए और बी में दोनों में सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है. तब हम लोग उस दोनों सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे. जैसे आप सपोज करो ए कोई सेट है, आप सपोज करो ए कोई सेट है, कोई एक ए सेट रहा होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई. और बी कोई सेट है
जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर कि पहले सेट के ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सारे बी के भी एलिमेंट हैं, मतलब ए सेट और बी सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है. यू कैन सी ऑल्सो. ओके, सो दीज टू सेट्स आर नोन एज इक्वल सेट्स. तो इसे क्या कहेंगे? इक्वल सेट. और डिनोट ऐसे करते हैं ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी. सो नाउ आई वुड गिव यू अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द इक्वल सेट्स. So students, now this is the formal definition of equal set. So it says like two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and written as A equals to B. मीन्स अगर दो सेट में दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है इसके जैसे, तो वो उसको हम लोग लिखेंगे A इक्वल्स टू B. अदरवाइज द सेट्स आर नॉट इक्वल एंड रिटन एज A इज नॉट इक्वल्स टू B. सो अब एग्जांपल देखते हैं इसका कुछ, जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. तो पहला एग्जांपल में सेट A कुछ इस प्रकार दिया है, A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4. और सेट B कुछ इस प्रकार है, सेट B is given as 3, 1, 4, 2. So are these equal? So I told you earlier also that in the set order does not matter. ये किस क्रम में लिखा है, किस ऑर्डर में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो उस अनुसार देखें तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. These two are equal. ये दोनों कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर होगा. सो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल.